वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा सत संगत जीओ। दिहाड़ा ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਬਚਨ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਮਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਚਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਜੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਦਾ ਹੈ। ਰਿਦਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
हीरा भी किया है, मेरा हीर है रतन नाम हर बसिया है। और हीरे शब्द दे विचों ही आकार लुप्त हो के हीरा भी उसने तय किया है। गुरु का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। उसने अगली पंक्ति भी स्पष्ट खोल कर देता है, शब्द रतन जित मन लागा। मन जिहड़ा है वो हिरदे दी जिवें कोई बिरछ होवे, उसदे चार टाणे होण, शाखा होण वड्डियां, इस तरह एक मन है। दूसरा चित्त है, तीसरी बुद्धि है और चौथा अहं भाव है, अहंकार जिसनूं कहंदे। अहं भाव अहंकार सुखैन जिहा ओपरा जिहा शब्द कन्ना तो सुन के ਉਹਦਾ इतना गंभीर बोध नहीं ਹੁੰਦਾ। इसे नूं अहं ਦਾ मतलब है कि मैं, ਜਿਹੜਾ मैं ये भी उस हिरदे की एक शाख है। जदों मैं शब्द कहिए तो ये पद कहिए, तो उसके अंदर ख्याल करिए थोड़ा जिहा सूक्ष्म कि मैं दे अंदर कोई समझ भी है, उसके अंदर ज्ञान भी है। मैं दे अंदर इस तरह ही जो चित्त है उसके अंदर भी वो चिंतन करने की शक्ति है। ये सतगुरु साहिब ने चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, चेते करना उसके अंदर भी। ते बुद्धि के अंदर तो विशेष करके ये चीज़ मिथी गिनी रखी हुई है, जिसमें ज्ञान या समझ के कह दईदा है। ज्ञान दो ही वस्तुएं हैं, एक संसार है, एक पार ब्रह्म परमेश्वर है। ज्ञान संसार दीयां चीज़ां दा भी है और परमेश्वर दा भी है। ज्ञान एक साधारण शब्द है। जैसे गुरु नानक साहिब जी का वचन है, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान, लख पढ़िए पाठ पुराण। इतने हुण लखा ही ज्ञान है, लखा ही ध्यान है, लखा ही परमात्मा के अंतर्गत सुरतियां। सुरत पद तो आम प्रसिद्ध है दुनिया दे विच। इसे जो विद्वता के अंदर शब्द वरते हुए हैं या शास्त्रीय भाषा है जो शास्त्रों के अंदर वरती है विद्वाना ने, वो आम लोगों को समझने पर कठिन हो जाते कि उन्होंने अंदर वरतों नहीं है। सो सुखाड़े रूप दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ ही ये समझ है और मुढ़ तो ही ये आप वरतों करते हैं कि जे कोई काम सही ना करता होवे, आपो विच ही करते होण
ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ, ਦਿਲ ਟਿਕਾਣੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਟ ਜੀਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਹਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੋਈਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹੋ, ਅਲੰਕਾਰ ਕਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੂਧ ਕੇ ਠਾਟਾ, ਸਮੁੰਦ ਬਲੋਵਨ ਕੋ ਮਾਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਬਲੋਵਨ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੇਟ ਗੋਸ਼ਾਸਤ ਹਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ। ਅਲੰਕਾਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਗਹਿਣਾ ਕਹੋ, ਭੂਖਣ ਕਹੋ, ਅਲੰਕਾਰ ਕਹੋ। ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਅਲੰਕਾਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ, ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰੀਏ तो उसके अंदर रस भी है।
जैसे शरीर के अंदर भी रस है, शरीरिक रस, एक आत्मिक रस भी है, आत्मा का रस भी है। सो कोई विचार सुननी वो है 9 रस हन। काव दे अंदर जे बीर रस भरिया है तो उसके अंदर बीर रस अगे सुन वालियां दे प्रवेश होगा। कोई रस यही जी चीज़ नहीं है भी संतरे माल्टे का रस कढ़िया। ये सूक्ष्म चीज़ां ने। जिस तरह कई गुरमुख जिहड़े सत्संगत करते हैं, कोई चंगा रागी कीर्तन बैरागी प्रेमी करने वाला है, कहते भी बड़ा रस आया है, कसा का बड़ा रस। रस कोई यही जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रस दसो कि की चीज़ है। सो उस जगह से भी रस आनंद है, खुशी है, खेड़ा है। तो उसी तरह ने इस 9 रस हैं। जे करना रस है विछोड़े करके पैदा होता है। करना रस कोई चीज़ बिछड़ जाए, सदा ਲਈ बिछड़ जाए, उसके विच उदासीनता आई, बैराग, ਉਹਨੂੰ करना रस कहते जे भी महान है। सो उस वक्त पता लगता है इन्होंने चीज़ों का जिस वेले वापरन। और साढ़े स्थूल शरीर में जो यंत्र फिट किए हुए हैं वाहिगुरु ने, ज्ञानमयी और कर्ममयी, उन्होंने राही साढ़े हिरदे दे विच ये चीज़ जाती है और उससे प्रभाव पाती है। प्रभाव पै के जिहड़ा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसके अंतर सारे ही है। तो उस स्थूल शरीर पर भी प्रभाव पाती है। शरीर चेहरे का रंग बदल जाता है क्यों किसी के विछोड़े का विच होवे या कोई दुखी होवे। स्वीकार ना करके विछोड़े करके भी आदमी दुखी होता है। जिस चीज़ के विच क्यों विछोड़े करके किसी का दुख होता है, उसका कारण की है, उसके विच मोह होता है। जिन्ना किसी वस्तु के विच संसार के विच मोह है, उन्ना ही हृदय के विच फिर उसके विछोड़े का दुख है। जिस चीज़ का मोह नहीं है, शहर बड़े बड़े होंगे है, महल्ले होंगे है, कई उत्थे मरते हैं, कई जमते हैं। किसी को जोड़े दूर रहने वाले उन्होंने पता भी या कोल दी किसी का मुर्दा भी लंघ जाए, वो कोई उन्होंने ऐसा नहीं खेत जिथे वो कहते मरते जमते ही रहते हैं। सो इस करके मोह जड़ा है, तो गुरु महाराज ने किया भाई ये वाहिगुरु की खेल है। दिवस रात दाई दाया खेल है सगल जगत। ये खेल का स्थान बनया है, जिमें खेल के स्थान के विच कोई पहला ही उस स्थान को कोई खेल कराने वास्ते या हमेशा की नीति कर देंगे ने। उत्थे पौन पानी धरती वेखते है, जमीन देखते भी ठीक है, पानी का भी प्रबंध चाहिए, पौन भी अच्छी होवे, इन्हें गंदगी बदबू आती होवे। उत्थे फिर भाई रहन सहन वालों का भी प्रबंध चाहिए है, जिन्होंने
कई दिन कई थां खेलां होंदियां रहंदियां ने, उत्थे कोई रहण वाला दा भी खाण पीण दा भी सारा ही चाहिदा प्रबंध। इस करके दिन श्राद्ध वेदा ईदा है और उन्होंने हिफाजत भी चाहिए, सेवा वाले भी चाहिए जिहड़े खिलाड़ी है, तो उन्होंने वास्ते फिर कोई उन्होंने इनाम देने वाला, या कोई गलत चलता है तो उसमें बाहर कढ़ देने वाला। उस चंगे माड़े भी चंगा बहुत खिलाड़ी अच्छा उसमें इनाम मिलेगा, जिहड़ा गलत है उसमें बाहर कढ़ दो। चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हदूर, इस वास्ते धर्मराज कायम किया है। ते वो चंगे ते माड़े कामां दी भी ये चंगी इस खेल दे विच इसके नंबर चंगे हो रहा चीज़ है, वो फिर चंगे माड़े की परख करता है, उसनों अधिकार दिता है, क्योंकि जिहड़ा खिलाउण वाला उसनों भी इहनूं दिओ अधिकार दिते हुए हैं। ते आपो अपने कामां दे अनुसार पाईओ, किसी नूं नेड़े इनाम मिलता है, कई नूं जिहड़े गलत खेडदे या बहुत गलती करते उन्हें कढ़िया जाता है, या सलाह मिलती है, दूर पहुँचाया जाता है। सो वाहिगुरू परमेश्वर की खेड जिस तरह वो सर्ज है, वाहिगुरू परमेश्वर भी सर्ज है। सो उसके अंदर ये बाहरली वस्तुओं के विचार सूक्ष्म ज्ञान आदिक जिसनों ज्ञान हुंदा है, वो उसनों ज्ञाता कह देंगे हैं। ज्ञाता ज्ञान गे, एक ज्ञान से एक अगे वस्तु है। हुण वाहिगुरू ये कहता है कि मैं सब दे अंतर ही है, और बाहर भी। तो गुरु महाराज दसे सो अंतर सो बाहर अनंत। सारे ये वाहिगुरू परमेश्वर तक, क्योंकि उसकी जिन्ने भी कोई क्रिया हो रही है, चाहे ज्ञानमयी क्रिया है, चाहे स्थूल शारीरिक अनात्म क्रिया है, वो सारी उस वाहिगुरू परमेश्वर की ही सत्ता नाल उसके हुक्म दे विच हो रही है। क्यों जिहड़े साडे साह ने, असीं इहनूं शरीर की जन मनते हैं, इस दे नाल जिन्ना चिर साह बगदे ने उन्ना चिर सब कुछ कंमकार करते हैं, तो जे साह निकल जान तो बस मिट्टी की ढेरी है। ये साह एक हवा है, कौन है ना, वो खास उसदे विच वाहिगुरू परमेश्वर ने उसदे विच शक्ति रख दी है अपने हुक्म दे नाल, और उसदे हुक्म दे विच ही है सारे ही। इसे नूं ना किते असीं मन बैठिए प्राणमय कोश है। तो वाहिगुरू परमेश्वर जिहड़ा ज्ञाता है, जीव है, साडे अंदर समझण वाला है, वो कोई आ जिहड़ा साडा शरीर है, हथ पैर बाहां, इहदे वर्गा है ते वो जीव विचों निकलदा है। जे इहदे वर्गा हो गए तो शरीर जदों छड्ड जाईदा है, वो विचों निकल जाता है, तो फिर इहदे वर्गा ना होया।
वो भी नाल ही मर जाना चाहिए। ये सारी दुनिया इस गल नूं जानती है। कह देंगे ने जी चलाना कर गया जी अमका, किधर नूं चले गया, परलोक नूं गया या भौर उड़ गया। वो जिहड़ा भौर है ना या हंस उड़ गया, वो साडा जीव आत्मा है, अपना आप जीव है। इसके अंदर अंदर जिहड़ी जिंद जान है, ओदा नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे। ये जीव के अंदर भी जिंद जान रूप जिहड़ा है ना, वो वाहिगुरू है। कहते पुष्पे की गल तो बड़ी हैरानी जी, कुछ समझ नहीं आती की होया। फिर वो आश्चर्य से करके किया है, वाह नाम अचरज को हुई। इसे करके वाह पद जिहड़ा है वाहिगुरू पद दे नाल वो भी आश्चर्य है। और उसकी जिहड़ी ऐसी कला है, हुक्म है, वो भी आश्चर्य है। तू आश्चर्य कुदरत तेरी बिस्मा, वो भी आश्चर्य का आश्चर्य है। सो सीधी गल है भी इस दे विचों हौमे निकल जावे ते फिर वही है। ते जिन्ना जिहड़े इस दे विच हौमे है, ये हौमे नहीं जिवें अंधकार दे विच कुछ नहीं सुझदा, इस तरह हौमे दे विच ही उसका ज्ञान नहीं हुंदा, वो सुझदा नहीं है। हौमे दा एक पर्दा पिया होया है उसके अंदर। सो उसनूं जिहड़ी साडी बुद्धि है या सुरत है, ये दो पद हन, पुरुष इस्त्री। इन्हां दे चिन्ह जिसनूं चिन्ह भी कह दिंदे है। आ विद्या पढ़ाने वाले पुलिंग कह दिंदे है, पुरुष का भी चिन्ह, ये इस्त्री का चिन्ह है कि आपां तां हैगे ना शरीर धारी, ते वक् वक्रे चिन्ह होने करके उन्हां दा वक्खो वखरा इस्त्री या पुरख ना है। ते विद्या दे विच भी कोई थोड़ी विद्या भावें तुसीं पढ़दे हो या पढ़े, कोई बहुते पढ़े, इस्त्री लिंग से पुलिंग है। उधर भी पुरुष इस्त्री हैगी, बचना दे विच भी। जैसे बुद्धि है, मन है, उसनूं पुलिंग कह दिओ जी। बोलन दे विच है, हिरदा कह दिओ। ते सुरत जिहड़ी है ये स्त्रीलिंग है। इसके अंदर जिहड़ा चेतन है, जिन जान है, ज्ञात कराने वाली शक्ति वो वाहिगुरू परमेश्वर ने रखी हुई है। तो इसका मालिक जिहड़ा वो परमात्मा है। परमात्मा प्रमाण प्रमेय, प्रमाण जिहड़ा उसका कर्ण है और प्रमेय अगे वस्तु है। वही है। ऐसे ही कर्ता है, कर्म है। कर्ता कौन है? करने वाला। कर्ता, कर्म ते क्रिया, ये तीन चीज हैं। ज्ञाता ज्ञान गए, परमात्मा प्रमाण प्रमेय। तो इसके अंदर जिहड़ा साडा आत्मा है, रब है, उसका चक्र चिन्ह नरबन जात अरपात निहन जे रूप रंग रेख पे कह न सकते, उसके विच है नहीं। ना पुरुष है ना स्त्री है। ऐसे ही साडा जिहड़ा आत्मा है वो शरीर दे अध्यास करके वो कहना मैं स्त्री हाँ, वो कहना मैं पुरुष हाँ, वो दे विच नहीं है।
ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਆਦਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਸ ਹੈ। ਅਧਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਅਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਧਵੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨ ਤੈਸਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਪ, ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ परमात्मा प्रमाण प्रमेय दोष और संस्कार सतवस्तु के ज्ञान ते संस्कार एक जान, त्रिविध दोष ज्ञान पुन सामग्री पहचान। ये इतिहास की सामग्री है। जिमें घड़ा बनाने की समग्री है, मिट्टी पानी तो पहला है ही है, जरूरी है। उस वास्ते घुमियार की भी लोड़ है, सोने के पूछण वास्ते सुनियार की लोड़ है, लोहे के वास्ते लोहार की लोड़ है। ये तो जरूरी है, इन्हें समग्री कह देंगे। कुम्हार ने भांडा बनाना, चक की भी लोड़ है, वो डंडे की भी लोड़ है जिसके नाल घुमाउंदा है, वो धागे की भी लोड़ है, इनू समग्री कह देंगे। जिवें प्रशादा बनाना घर दे विच ते उहदे वास्ते आटा पानी तो जरूरी है, अग भी जरूरी है, चाहे कोई हीटर से कर ले, कोई है अग है, बिजली है, चाहे अग ही है, चाहे कोई सूरज तो लै ले तपश, मतलब उस दे विच लोड़ है। ते पकाउण वाले की भी लोड़ है। जिससे कोई प्रशादा बेलना है या होर चीज़ है, या हथां की भी लोड़ है, जिहदे नाल बनाउणा। जे टुंडा होवे तो फिर नहीं बना सकता। इहनूं समग्री कह दिंदे। ऐसे ही भाई कोई भी वस्तु है वो प्राप्त करनी है, जिवें प्रशादे बनाने, भोजन तैयार करना है, तो ये परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते भी साधन समग्री है, वो समग्री भी चाहिए है। वो वैराग चाहिए है। वैराग होंदा किसी वस्तु का त्याग और उस वालों उपरामताई होनी। उधर ख्याल ना जाना, क्योंकि जो उधर ख्याल ही जाता रहे चीज़ों वाले, हम संसार है, इधर हम तो बैठे हैं ना, हम आ जाओ अपनी घरवाली की गल। सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा हुए। बुद्धि सारे के अंदर ही है, इस्त्रियों के अंदर भी है, पुरखों के अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है। कोई स्त्री लिंग होने करके उन्होंने उपदेश दिता है, तेरा पार उतारा हो जू। एक तो संसार दे विच है पुरख स्त्री घरवाली है, भाई वो कहते जी घर वाला है नहीं, वो कहते मेरे घर वाली है नहीं। ये हुण छड्ड दिओ, ते चाहे स्त्रियां चाहे पुरख है, उन्होंने घर वालियां भी हैगियां।
जिहड़ी सुरत है वो भी घर वाली है जीव आत्मा की, ते बुद्धि भी घर वाली है। घर वाली दुरुस्त रखे ठीक घर बार नूं और समझ सोच ना चले तो फिर ठीक है ना। तो घर है हृदा, इस दे विच रहिंदी इसनूं ठीक रखिए, मन नूं ठीक रखिए, बुद्ध नूं ठीक रखिए, टिकाणे रखिए, चित्त नूं ठीक रखिए। ठीक इसका की रखना है? जिवें इस्त्री भाई किसी वली ना वेखे, गुरु घर दे विच पुरख ऐसी निगाह दे नाल दिष्ट विकारी बंधन बंद है, हों तिसकै बल जाए। जिहड़ा विकारां वालों दृष्टि बन लवे, गुरु नानक साहब जी कहते उस तो असीं कुर्बान जाते हैं। वेख के किसी के रूप नूं, चाहे पुरख है चाहे इस्त्री है, दोवां नूं कोई वकार दा फुरना ना पवे। ये उसदे विच बन लाता है। फिर जो गुरमुख अभ्यास करते हैं, जाप करते हैं, या कई बार अखां मीट के वो अंदर जिहड़ी है ना, वो अंदरों ही जिहड़ा है मन है, वो कहते फुरने ठोंदा रहिंदा है, उत्थे बन लैंदा है, उत्थे अंदर ही गल्लां करी जांदा, किसे ना जाके उतों बाणी पढ़ी जांदा, अंदर ही गल्लां करी जांदा, उत्थे चले गया उत्थे चले गया। आम नूं नहीं ये पता लगता, जिहड़ा इस पासे पए उहनूं पता लगूगा। नहीं तो जिहड़े खुले आजाद ने उन्हां नूं की है। कि ओहदा सुभाਅ पिया होया है, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਆ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 101 ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਜੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘਟਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਨਾਤਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਤੱਕ विद्वान जेडे इत्थे दी PhD ते DDਆਂ तो छड्ड दिओ, ते जिन्ने भी कवि है, शास्त्र बेते है, वेद बेते, वो सब नूं ही मरोड़ी बैठे। तो एक मन है, मन खुटहर नहीं तेरा विश्वास तुम महा उद्मादा, खड़का पैकर तो छुटे जो ऊपर लादा, जाप ताप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड, सिमरै नाही जौन दुख निर्लज्जे भांड। ये बेशर्म भंड, तू मुड़ मुड़ के उधर नूं जाना है। ते रक्त बिंद कर निमिया अग्न उदर मंजार, उर्द मुख कुचील बिकल, नरक घोर गुबार। इस गल नहीं चेते करता, मुड़ मुड़ के उत्थे नहीं जाना।
ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਖਤ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ, ਸਾਡੇ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਐਸੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ 12 ਮਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ, ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲੂ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि स्त्री तो नहीं है, जीवात्मा ना सुरत स्त्री है, उसके चिन्ह कोई ऐसे तो नहीं है। बाहरले चिन्ह करके शरीर का फर्क है, वो स्त्री कहते पुरुष कहते। सुरत का क्या चिन्ह है, मन का क्या चिन्ह है, जीवात्मा का की चिन्ह है, कोई नहीं है। रब का कोई चिन्ह नहीं है, ना नर है ना नर है, ना नार है, ना नर को आकार है। नार न पुरख न पंख न साचा चतुर स्वरूप, ना नार स्त्री है हो, ना वो पुरख है ਤੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਉਹ ਹਿਜੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿਜੜੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ,
ਮਨ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋਮੈ ਜਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਔਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੂਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦੇ। जैसे लदाई के कल्याण सर है, सर्प सी बहुत दुखी सी, कीड़े खाते सी उसनू। पहले जन्म दे विच विद्वान बड़ा सी, ते आत्मिक ज्ञान उसनू है नहीं सी। विद्या के बल के नाल लोगों के पास पूजा करानी, खाना पीना ते खुले विचरना। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਚਰਨ ਛੁਹਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਵ ਆਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਚਰਨ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ਟ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ, ਔਰ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਖ ਤੁਖਾਰਨ ਵਿਆਪੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਵਰਤ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
भाई ये जोड़े दूसरे आम सधारण जे जीव सृष्टि दे विच पति और स्त्री बने हुए हैं लिंग पुलिंग करके, इन्हां विच ऐसी समर्था नहीं है। ये तो सब काल दे खाजे हैं। और मरदे जमदे कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। ये यमन भाषा दे पद हैं, मुसलमानी भाषा दे बीबी मियाँ कर कर मियाँ सबना जियाँ बोली उगड़त मारी। वो मियाँ कह देंगे इधर, कह कोई कहना स्वामी जी पति जी कह देंगे, कहने बीबी। ओ ये तो सब मरदे जमदे हैं और काल दे खाजे हैं। ते वाहिगुरू परमेश्वर अकाल मूर्त है, काल तो रहत मूर्तदार स्वरूप है। कोई ऐसी मूर्त नहीं है कि कोई पत्थर दी है या कागज की मूर्त है। वो काल तो रहत स्वरूप है वाहिगुरू परमेश्वर, और जन्म तो रहत अजूनी है। ना कदे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी। गुरबाणी पढ़ते हो तो समझ के पहला अपनी बुद्धि नूं कहो कि समझ के पढ़, मन नूं कह भी विच ही रह। घर रहो रे, ये घर वाली ने भी कहते घर ही लिया कर, और थाई नहीं ठीक। पराए घरां विच जाना ऐसी तो भी तो है। अंदरों जिस वेले कोई भजन बंदगी करते हैं, जोड़ा दूजा भाव है मन किते ही लग जाता है। ये सब दूजे थां लगना, जोड़ा दूजा भाव ही है, दूजिया पत्नियां दे विच ही लगना है। या मन का दूजिया इस्त्रियां दे विच ही पुरख जे दूजे घरां विच जावे ठीक नहीं। घरवाली नूं छड्ड के तो असली घरवाला परमेश्वर है। तो असली गृहस्थी तो वही है जो अपने धर्म च कायम रहे। तो ऐसी तो गृहस्थी भी नहीं है, ना गृहस्थी है ना बरकत ही है। क्यों बरकत हो जिसका मोह नहीं है। घरां दे विच रहिंदे होए फिर भी गृहस्थी नहीं है, ते बाहर रहिंदे होए कल्ले फिर भी बरकत नहीं है। सो ये बाणी पढ़न लग्या, नाम जपन लग्या, जिहड़ा ख्याल है और बुद्धि दा मन दा ये किते चित टिकिया, किते भज गया, किते होर पासे, किते अंदर ही किसी नाल गल्लां बातां दो धिरां बना के करदा रहा, बन लिया धिरां आप नहीं हो रही किसी नाल। वो तां फिर ये चीज़ है बई कबीर साहब जी ने जैसे किया है, तिसे जिन्हें निवाज साज हम किए तिसे विसार अबर लगरे। जिन सानू साज के निवाजिश बढ़ाई दी मनुखा दे दी, वो उन्होंने अंदरों ही भुला के ते होर पासे गुरमुख लग जाता है। जिहड़ा मन है सो मन पे मेरा मन चले गया, फिर हुण इससे विचार ले लो। अभ्यासी लोग नाम जपन वाले
कि जे भी अपने ते घटा के वेखिए सारे कि जे मन चले गया तो जान दे मन नू तू तो है। मेरा मन चले गया तो तू पढ़ी जा बाणी अंदर, जान दे मन नू जिधर जांदा ते या फिर ये चीज़ है भी फिर मन दे मगरी भी मैं भी चले गया, जीव आत्मा भी चले गया। गल तो ये हुई है जो मन दे मगरी हो चले गया तो फिर गैर हाजिर है, अपने समय से ड्यूटी नहीं दिंदा, किसी होर पासे चले गया, चोर है। वो मालिक दा चोर है, उसका जिन पहरा नहीं दिता। तो इस करके समझाने वास्ते मन बुद्ध दे ताईं ये सब चीज़ां हैं। सो भोख तुखार न व्यापी इस दे विच भाई ये तो पहली प्रथम विचार है, समझण वास्ते है। जो इसनों असीं वरतों च लियावांगे, जदों पिछों जाके बैठे जपजी साहब पढ़न या वाहिगुरू वाहिगुरू करन या फिरदियां तुरदियां भी ते फिर भी हाँ उन्होंने गलों नूं विचारना है भी हाँ ठीक है हुण जांदा है, इसनूं रोको। जीव भी मगरी चला गया तो उन्होंने दसन वाला कौन है? वो है गुरु, ज्ञान गुरु। आत्म उपदेशों नाम बभूत लेगा, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और जी ये गुरु की सिक्ख्या है इस जगह पे सुन रहे हैं, वो सिक्ख्या के संस्कार हैं और साड़ी श्रद्धा और इच्छा है। और उस दे नाल ही वाहिगुरू परमेश्वर जो है ज्ञान स्वरूप है, उसने उसनों फिर कहना भी मेरा तो मन चले गया सी तो क्यों फिर उसनों समझाना है। जे बच्चा छोटा हुंदा हुंदा कुसंगत हो जाए, माइया ने तो बच्चे ही है, 15-16 साल का हो जाए शराब पीण लग पवे, कुछ साल हो जान फीम खाण लग पवे, उन्होंने समझाओ हटदा नहीं। मैं तो बड़ी समझानी है, समझदा नहीं। ये जी श्रेष्ठ बुद्धि कहनी मैं तो समझानी है, गुरु की सिक्ख्या वो भी समझाते हैं, मन नहीं हटता, उन्होंने अमल लग गया। शराब पीण का लग गया, फीम खाण का लग गया, अंदर ही होर थां संकल्प उठाउण का लग गया, अंदर ही अमलियां कोल जांदा है, जिथे कोई प्रीतियां ने उत्थे चले जांदा है, अंदर ही उन्हां नाल गल्लां बातां करदा है। पग्गां बिन हुरियां मारता, बदने बिन खिर हासता, बाहरले मुंह तो बिना ही अंदर ही संकल्प उठाई जाता है। तो तन हन हो गुरमुख माई पाई, जिन्हां दा मन वाहिगुरू दे नाल जुड़िया रहिंदा है, क्या वो भी समझाउंदे है, मन नहीं हटदा, उन्होंने अमल लग गया। शराब पीण का लग गया, फीम खाण का लग गया, अंदर ही होर थां संकल्प उठाउण का लग गया, अंदर ही अमलियां कोल जांदा है, जिथे कोई प्रीतियां ने उत्थे चले जांदा है, अंदर ही उन्हां नाल गल्लां बातां करदा है। पग्गां बिन हुरियां मारता, बदने बिन खिर हासता, बाहरले मुंह तो बिना ही अंदर ही संकल्प उठाई जाता है। तो तन हन हो गुरमुख माई पाई, जिन्हां दा मन वाहिगुरू दे नाल जुड़िया रहिंदा है, ते जिन्हां दी घरवाली वाहिगुरू दी सेवा च बुद्धि रहिंदी है, ते ये सेवादार बन गया है, ते चित्त भी ते मैं भी सेवादार बन गया, जिहड़ा मैं अंदर फुर रहा है। ये अगे भाई व्यवस्था है बहुत उच्ची,
ਜਿਹੜੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 19 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਮੱਧਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰਸ, तो गुरु अर्जन साहब जी कहते विखे रस पी कर त्यागरी सखिए नाम महा रस पीओ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਕੋਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਿਖਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਬੋਲ ਪਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਬੋਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਬੋਲਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਘਟਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਹੋ, ਮਨ ਕਹੋ, ਧਿਆਨ ਕਹੋ, ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ।
वो सिमृति ज्ञान है। कई तो जिन्होंने वरतों च हो जाती है ना चीज़, जिमें आ कईयां दे बाबर के सुधाई करते हैं, चंगा दौर चलिया इसका वो तसीहे देंगे, वो जो घर में भी आ जाते हैं 6 महीने भी हो जाए फिर भी उन्हें कोई गल करो तो ही डर उन्होंने वेख लैन उदों ही डर जाता और मन में भी डर जाना कि ऐसे दुख तो मुड़के ना पई उन्होंने बाप पवे, क्योंकि उस वेले प्रत्यक्ष ज्ञान जोड़ा है वो तो नहीं है भी उन्होंने कुटते मारते उदों तो डरना ही डरना है। पर फिर भी उस तो बाद इस तरह जे चंगी चीज़ है कोई तो मन के फुरने नाल ही उसका आकार भी बच जाता, उस मोहित भी हो जाता है। ये था मन नूं और ये नाल ही जीव जिहा वो बहुत सूखम है जीव भी, तो वो नाल ही रल जाते हैं। ये तो विचार के नाल वक्रो वक्रे प्रतीत होंदे है। सो ये जिहड़ी विचार है भी उसनूं जिस वेले असीं बैठांगे जां एक चित हो के कोशिश करांगे जां तुरदे फिरदे करांगे, उस वेले फिर इसका तजुर्बा देखो। पढ़ता है मुंडा पढ़ता है पहली च या कॉलेजां वाले पढ़ते उत्थे जाते भी है कि सिनेमा ही देखने जाते हैं या रोटियां राटियां खा के मुड़े आउंदे ने, उन्होंने अगे की पास करना है। तो मन बुद्ध ने कोई इन्होंने कोई जमात पास भी की है काके ने या काकी ने, क्यों बहुत बहुत होर काकियां काकियां जी उन्होंने भी समझाने च लगे रहे, अपना घर का तो समझते ही नहीं है। जिवें खट्टी की खट ले उन्होंने विचों कुछ भी ना रखे। सो सतगुरु साहब जी पोख तुखार न व्यापी कंठ मिलिया हर ना हो, फिर वाहिगुरु परमेश्वर जिन्होंने कंठ के नाल मिले हैं, बाहरलियां गल्लां ने पति सती दियां कंठ नाल कंठ लाउंदे ते उन्हां नूं आनंद आउंदा है। इत्थे ना जीव का कोई कंठ है ते ना कोई रब का ही कंठ है। ये बात कैसे अलंकार है, इसमें कह देंगे जिस तरह गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, गुरु दरिया कोई दरिया पानी थोड़ा उत्थे बगदा भी दरिया है, जिमें दरिया बगदा हुंदा और साफ पानी हुंदा है, इस तरह ही गुरु साहब उन्होंने उपदेश दरिया वांग वग रहा कहते। दरिया खेतियां नूं सरसब्ज कर दिंदा है, धरती नूं कर दिंदा है, सा धरत पई हरियावल जिथे मेरा सतगुरु बैठा है, से जंत पए हरियावल। ये है भी जिन्होंने नाल भी पोख तुखार न व्यापी कंठ मिलिया हर ना, जिन्हों के गले के नाल पति बाहरली चीज़ है सानू समझाने वास्ते सुख वास्ते प्रवृत्त होंगे हैं, तो ये रब का सुख है, सुख रूप भी है और व्यवस्था है। जैसे एक जीबो लख होवे लख होवे लख 20 लख लग गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, एक राहे पथ पवड़िया चढ़िए हुए 21, ये एवं नहीं अवस्था प्राप्त हो सकती, नानक नदरी पाइए। ऐसा कौन है एक जुबान तो लख वारी वाहिगुरु कवे, लख तो अगे भी 20 लाख वारी कहना हो जाए, क्यों एक बारी बोलते हैं इस तरह ही लख वारी बोलिया जाए
तो लख तो फिर 20 लाख 20 लाख तो अगे लख लख फिर वो ना गेड़ा कोई ऐसा कुछ कह सकता है ना। नानक नदरी पाई ये वाहिगुरू की कृपा के नाल साढ़े लखां की तो की गिनती है, करोड़ों की गिनती के विच रोम और सूक्ष्म नाड़ियां हैं। उन्होंने विच भी रसना वांग ही उचारण होवे, बल्कि धरती के भी जरे जरे दे विचों और पानी के भी कतरे कतरे दे विचों वही आवाज़ां सुन जो भी बोल हुए नानक नदरी पाइए। और फिर मन विच रवे, बुद्ध विच रवे, सुरत विच रवे, चित विच रवे, मैं भी विच रवां उसदे। रब कहना मैं नाम दे विच वसदा है। जे नाम किसी तेरे दे विच आके वस जाए तो मैं उसे भी आ वसदा। नावे अंदर हो वसा नाव वसे मन आए। तो कंठ मिलिया हर नाव इथे जैसा, इधर केड़ा है भेद निश्चय रूपी कंठ है। जैसे उसिदा ने लिया के रख दिते, ये तो पहला पौड़ियाँ मुंदा संतोख शर्म पथ चोली ध्यान की करे विभूत खिंथा काल कुआरी काया जूट डंडा प्रतीत। इथे डंडा है और प्रतीत भरोसा है। जिन्ना प्रतीत न आया भाई सो जीड़ा जल जाओ पूर्ण प्रेम प्रतीत सजन। मन पुलिंग है, उसके नाल अलंकृत करने वास्ते डंडा है। जो भी हाथ से झंडा पकड़ दे तो इधर जेड़ा मन दे विच भरोसा है वाहिगुरू दा और सतगुरु साहब जी की दसी जुगती आत्मा प्रार्थना एको करे वो भेदता ही होगी। इस करके अभेद निश्चय कहो, भरोसा कहो। अभेद निश्चय रूपी डंडा है। मन दे विच पूर्ण भरोसा सतगुरु साहब जी एक साडा डंडा पकड़िया हुआ है। क्यों भरोसा होवे वाहिगुरू ने रखिया करनी। प्रहलाद का भरोसा सी, निश्चय सी, वो डंडिया नालों भी तोपा नहीं उसे कुछ कम कर सकती है, आइटम नहीं कर सकते, पौन पानी अग्नि नहीं कर सकते। अगर जल अग्नि विच घत्या गुर प्रसाद न जले जिला। जल विच पानी विच बच्चा सी एक प्रहलाद पढ़ाए पाठशाल संग सखा बोलिए बाल तू राम कहन की छोड़ बाल। माँ ने भी कहा छड़ दे बच्चे प्यारे होंगे है भी बच्चा जींदा रहे। इस तरह नामदेव जी भी माँ जिस वेले उन्होंने मारन लगे तो वह कहने तू कह देता खुदा खुदा कोई माड़ा। वो कहने ना तू मेरी माँ तो ना मैं तेरा मुंडा। ये है रब दे भगत, उन्होंने उही माँ उही प्यो। तो जोड़े कोई भगती करते माँ प्यो उन्होंने ठीक है, उन्होंने सत्कार है। नहीं तो वो करके दे पितर की छोटी गुर को नाम ले। घर के जोड़े मास्टर सी पढ़ाने वाले उन्होंने भी सिक्ख्या छड़ दी। तो पितर जोड़ा वह प्यो सी उहदी भी माँ की भी सिक्ख्या छड़ दी। इस करके जे किसी के माँ प्यो यह जे होण उधरों हटाते होण तो रब की भगती नहीं छड्डनी। उन्होंने कहना तो ही है माँ प्यो कितने मुंडे नूं मारदे थोड़ा होंगे। तो प्रहलाद फिर प्यो रह गया मुंडे नूं मार लगे। जे भी प्यो की सेवा करो जी आखे लगो। इस करके सारे का माँ प्यो गुरुआन का गुरु महान गुरु और जगत गुरु वाहिगुरू।
वो है। सो कंठ मिलिया हर नाम अभेद, जिस विच भेद न होवे, आत्मा प्रात्मा भेद निश्चय रूपी कंठ दे नाल जिन्हां दी सुरत दे विच भेद निश्चय होना, उसनूं कंठ बना लिया। ते वाहिगुरू परमेश्वर जिहड़ा है वो पति बन गया अंदर सुरत दे विच। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਖਤ ਫਾਰਨ ਵਿਆਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸਭ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, तो उत्थे असीं बहुत एक चित हो के वाहिगुरू परमेश्वर नूं आराधन किया और वाहिगुरू साक्षात हो गया। वो चरणों के विच सुरत चुभी रही सरगुण विच भी, और वो चरण अधिष्ठान स्वरूप भेद निश्चय रूप के विच भी उत्थे बर्फ नहीं पौंदी। बाहर ना असीं तो चाहे पति है, चाहे सती है, चाहे कोई है, सही तो पाले बन जाते हैं, लियाओ पूरा लियाओ, ठंडा पानी ना होवे, नाले पति नाले सती। इस करके कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े निह लगा विसरिया करतार, किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलन का। ये नाल कहते प्रेम पाइए, गुरु नानक साहब कहते कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे कूड़, नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़, राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ मारे। तो जे असी जिहड़े पति नूं छड्ड के दूजियां थावां दे विच जांदी होवे, वो महामूर्ख है, बकारण है, वेशवा है। ऐसे ही साडा मन जो जीव आत्मा जी होर था और सुरत होर था फदी फिरदी है, तो ये फिर ठीक नहीं है। या जीव रूपी स्त्री है और अंदर ही इससे साक्षी पति है, और इसका इतना है भी भाई बाहरले तत्व भी जिहड़े वाहिगुरू दे बनाए हुए ने, जो उसकी चरण शरण उसदे विच लिवलीनता होएगी तो ये हो नहीं सकती। और इत्थों तक गुरु के बचना अनुसार जिहड़े नाम दे विच समा गए, हर जन हर हर नाम समाने, नाम अर्थ रूप धुनी रूप, धुनी तो अगे अर्थ रूप और सिद्धांत रूप दे विच जिहड़े समा गए ने ना नाम दे विच, दुख जन्म मरण भव खंडा है, उन्होंने फिर क्योंकि वाहिगुरू दे विच कोई तत्व आदि की इन्हां दी ताकत नहीं है, रब नूं कोई डबो सके, पानी डबो सके, अग साड़ सके, कि सूरज आदि होर जिहड़े चीज़ है कहते करोड़ां आइटमां की शक्ति है, तो एक इन्हां दे आइटम दे नाल की सड़ना है, कहते रब भी आवे उन्होंने भी साड़ देंगे। इस करके फिर बर्फा ने उन्होंने की करना है। पोख्त फारन व्यापी कंठ मिलिया हर ना हो, मन वेद्या चरनार बिन दर्शन लगड़ा शाह, शाहो पातशाह, शाह पातशाह उस वाहिगुरू के चरणों के कमलों के सरगुण स्वरूप के साह नाम साह का भी होंगे, साह साह जिहदा उधर ही लगे है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, जो सांस गिरास ते आवे मेरा हर हर। सिख तो बाहर जिन्ना करके तो बन जाना सौखा ही है, पेख बना लेना, जो सांस गिरास ते आवे मेरा हर हर किहड़ा पाउंदा है, वो गुरु के मन में सिख पाउंदा है। सो सिख गुरु बन पावे।
इत्थों असीं भी असीं पा सकते ना साढ़े सास फिरात दे विच मिले हैं, ना साढ़े घर वाली ठिकाने ते रहिंदी है सुरत, ते ना साढ़े मुंडे ही होर आखे लगते है। ये चंगा गृहस्थ है बई, क्योंकि गुरु नानक साहब 12 साल पिछों आए, माता पिता का मोह हुंदा है, गए बाहर बैठे कहते घर चलो जी, थोड़े मुंडे है तो कुछ ना कुछ देखो, घर नवे मकान बनाए हुए है। सतगुरु साहब जी कहते साडा परिवार और है, सत संतोख धीरज धर्म विचार। जो जिज्ञासु है गुरमुख है उसके अंदर ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है और मुक्ति रूपी उसकी घर वाली लाड़ी है। कबीर साहब जी ने स्त्री रूप कलंकार दे विच कहंदे जीव आत्मा परमेश्वर के नाल मिलाप कह कबीर मोह ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना। ब्याह हुंदा इधर बाहर मेल जोल घरां विच रहना, उस रूप रूपी घर दे विच रहिंदे ते सुरत उन्हां दी वाहिगुरू दे नाल एक विख होई हुंदी, यही ब्याह है। और ज्ञान रूपी पुत्र मन वेद्या चरणार बिन दर्शन लगड़ा साह। चले चल सुन गया। मन वेद्या चरणार बिंद दर्शन लगड़ा साह। आगे पढ़ दे। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। इन्हों को नहीं ला। ओट गोविंद गोपाल राय, ये हुण तां भाई उस वाहिगुरू दी ओट है। ओट आसरा हुंदा उस वाहिगुरू दा ही आसरा है। ओट गोबिंद गोपाल राय। गोबिंद जो अंदर रब रब वसदा इंद्रियों का प्रकाशक है या वाणी करके जानने योग है। गोपाल गो पृथ्वी का जो धरती आदि तत्तां की भी पालना कर रहा है। ओट गोबिंद गोपाल राय राजा रूप है और सेवा स्वामी लाह, ऐसा स्वामी है हमारा, राधा स्वामी नहीं है और कोई स्वामी नहीं है। सेवा स्वामी ला। जे वो कहते भी असी तो उसी नूं कहने हैं तो फिर तुसीं वखरा क्यों चलाउंदे हो पंथ? वखरी क्यों ऐसी अपनी कोई मन विच होरनां नूं करके ते उधरले पासे कर दे हो? जे कोई चीज़ है तो इस दे विच आ जाओ। गुरु नानक साहिब जी ने जो वाहिगुरू ने रस्ता दस्या है, सेवा स्वामी लाहो, ऐसा जो स्वामी वाहिगुरू परमेश्वर है भाई, ਉਹਦੀ सेवा किसी की की हुंदी है? जिहड़ा किसी का हुक्म मनना है। हुक्म मनिया होगा प्रमाण तो खसने का महल पाए से। कि जी हुक्म खसने भावे सो करे, जिहड़ा मालिक नूं करदा वो करे। मनो चिंध्या सो फल पाए सी तो दरगह पैदा जाए सी। सेवा स्वामी वाहिगुरू दी स्वामी की सेवा पाई सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच। वो स्वामी वो तो बहुत मुल्लो मुल्ला आख्या न जाए, पर उन सुखाड़ा रस्ता गुरु स्वरूप हो के लाओ बई सानू हुक्म, ये चीज़ सब सारे विच व्यापक है, निरूप है, रूप रंग तो रहत है, इस दे विच भी है। तो आ तुसीं मन लो, गुरु ग्रंथ जी मानी। देह तो उपदेश हुंदा है ना, शरीर तो देह कला ये अर्थ नहीं हुंदा शरीर का। देह स्थूल शरीर का भी है, सूक्ष्म शरीर का भी है, देह बुद्धि का भी है। देह अर्थ देण का भी है, क्रियावाची। आखे मंगे देह दे। सेवा स्वामी लाहो, इस करके मन करके भी आज्ञा मननी है, बाणी करके भी आज्ञा मननी है, शरीर करके भी आज्ञा मननी है, बुद्धि करके भी आज्ञा मननी है, चित्त करके भी आज्ञा मननी है। चौगिरद हमारे राम का, जदों आज्ञा मनांगे फिर साढ़े 4 चफेरे जिमें राम लक्ष्मण ने वो कार कर दी सी, कोई चीज़ नेड़े नहीं आ सकती।
गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे। ये फिर 4 चफेरे पैरा लगे और पैरा भी समर्थ गुरु का है। जाम गुरु होए बल तने क्या गार्व दिजे, जाम गुरु होए बल लख बाही क्या किजे। लखा सुर में बाह वाले वो नहीं वह बिगाड़ सकते, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हाँ जी, सेवा स्वामी लाहो पाई वाहिगुरु परमेश्वर की सेवा का ये लाभ है। कहते रब तो दसदा नहीं वो सेवा किमें करिए, इसे करके उन्हें दस दिता भी मैं दसदा नहीं बोलता है। आकाशबाणी होंगी है सारिया के विच होर चीज़ है कि ओ भाई सेवा स्वामी ला विख्या कोहे न सकाए, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। हाँ, उसने आसरे वाहिगुरु की ओट लो तो वाहिगुरु परमेश्वर की पाई सेवा का इसके लाभ लै लो। लाभ यही है उसने अपना तख्त थानू उत्ते बिठा देना है जिन सेवा की। आप गुरु नानक साहिब परमेश्वर स्वरूप उन्होंने सेवा की और गुरु अंगद साहिब जी ने तख्त से बिठा के उन्होंने चरणों से मत्था टेकिया। आप वाहिगुरु परमेश्वर थोड़ी पूजा करेगा। यह जो कोई है, कोई स्वामी कोई दुनिया में ऐसा पातशाह है, ठीक है राज तो देते पर मत्था टेकना। और फिर ये सारिया झूठिया चीज़ा ने। ओट गोबिंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो। हाँ जी चलो अगे। देखिया कोहे न सकाए मेरे साधु गुण गा। तो ये उस वाहिगुरु परमेश्वर का खेल है और आप करके दिखा रहे हैं। हाँ जी, विख्या कोई न सकी जड़ी विख्या है, विख्या माया का भी है। विख्या विख बेव नूं कहंदे है जिन्हों कि माया चिमड़ी हुई है सानू। माया की है, रब भुल्ला है सानू। माया माया भी दिसती नहीं है, काम करती है वो। ये माया जित हर विसर है। जदों समझ लो वाहिगुरु सानू चेते नहीं, मन वाहिगुरु विच है तो उस वेले माया परे। जदों मन होर पासे विच लग गया तो उदों माया चिमड़ गई। एडी छेती चिमड़ती है। जे हंकार आ गया चिमड़ गई, जे दूजे पासे लग गया तो जे माया जिथे रस्ते मोह उपजा तो किसी होर पासे वाल नहीं चले गया, ध्यान ख्याल से मोह लग गया। मत देख फूला भी उसरे तेरे चित न आवे लाओ, हर बन जियो जल पल जाओ। ये गुरु नानक साहब की इन्नी भक्ति होनी चाहिए है कि वाहिगुरु परमेश्वर तो बिना ये माया साड़ दी है। ब्यो है जिन्ना चिर चिमड़ी उन्ना चिर ब्यो एक बारी मार दी है, लखा बारी मारूगी, करोड़ा बारी मारे। और इसके 5 पुत है माया के काम क्रोध लोभ मोह हंकार, वो भी मार दे। इन्हों के नाल ही जन्म मरण है जोड़ा इन्हों तो लंघ जाए 5 तो, और वाहिगुरु विच मन जिसका लिपलीन रहे तो वो समझ लो भी मुकत है। जे बिख्या सगली तजी लियो पेख पैरा, कौन नानक व मुक्त नर ते नर माथे पार। जिसने विख्या जिहड़ी माया वाहिगुरु नूं भुलना, दूजे पासे मोह ना करना, लिवलीन रहना, चित ने ना जाना, फिर भी हौली हौली इसका समर्थन करदिया होया, अभ्यास करदिया होया किवें होगा वाहिगुरु के अगे बेनतियां करदिया होया ते फिर इसका रस भी आउण लग पेगा। फिर वो जिस वेले रस आ गया ये रस साढ़े वो रस आवा, वो रस पिया तो ये नहीं पावा। और ये वाहिगुरु की दात है, बख्शिश है। उसकी आज्ञा में चलदिया होया बेनतियां करते रहना। एक काल कृपान बिना बिनती प्राप्त होए न किन्हू नैक रजाए। चाहे किन्ना पढ़ लवे, चाहे किन्ना कर लवे, किन्ने जप तप कर ले या होर चीज़ है, वाहिगुरु नहीं कोई प्रसन्न कर सकता।
बेनतियां ना कागज दीप सवै करके अरसात समुद्रन की मस्क है काट विनाशपति सिगरी लिखवे हूँ कि लेखन काज में न हूँ सारस्वती बक्ता करके जो कोट गणेश के हाथ लिखाए हों एक काल कृपान बिना बिनती प्रप्त निकिन हूँ न कर जाऊँ इस करके उससे अगे जाप करो अंदर ही बेनतियाँ करो कि महाराज कृपा करो नहीं तो काम दा हो जाए गेड़ क्रोध दा हो जाए गेड़ ਉਹਨੂੰ कौन फिर रोकूगा अहंकार मैं भाव हो जाए उल्टे फुरने उठाने वो बेनतियां नाल ही यह चीज़ होएगी पर वही विख्या कोई न सकी जिहड़ी विख्या है माया ये भी अपना असर नहीं प्रभाव पा सकी क्योंकि लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमृत वरता है माया ने हुक्म चला लिया तृष्णा ला दी हर एक चीज़ की पदार्थों की वकारां की खाण पीण की विख्या कोई न सकी ये असर नहीं कर सकेगी जिथे वो जुदियाँ चीज़ां काम नहीं असर कर सकेगा क्रोध नहीं असर कर सकेगा लोभ नहीं असर कर सकेगा मोह नहीं असर कर सकेगा अहंकार नहीं असर कर सकेगा मैं ना ही प्रभ सब किस तेरा इगै निर्गुण उगै सरगुण केल करत दे स्वामी मेरा तो ये ऐसी अवस्था जिहड़ी है जनानी उन्होंने कंठ मिलिया हरना उन्होंने नहीं बर्फ पाउंदी चलिए जड़ता बिरती जड़ी होनी जड़ जी हो जानी है जी सुन दिया हो गया जी उत्थे नाम का उच्चारण नहीं होना जिमें कोई 6 बजे तो एक्सीडेंट होने तो बिसुरत हो जाए कुछ नहीं ऐसी जड़ता नहीं ऐसी जड़ता अवस्था भी होती है एवं सुन दिया हो जाना वो शून दे विच और बोध मत वाले ने ऐसे शून नूं ही उन्होंने मुक्त मन लिया मिल साधु गुण गाओ पर ये तां गल होगी भी जेड़े गुरमुख ने गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहा समाई गुरु वाली जिन्हां दा मुख है गुरमुख सन्मुख मनमुख बेमुखी ये मन भी जिन्हां दा गुरु के जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले अपना जीव आत्मा गुरु स्वरूप दे विच रहे वो व्यापक स्वरूप है परमेश्वर स्वरूप है उसके नाल लग्या रहे गुरु के चरण हृदय ध्याए कि सरगुण स्वरूप दे विच भी प्रगट होण हृदय विच ध्याना करे अंतर आत्मा संभाल जिहड़ा साडा जीव आत्मा उसके विच भी संभालना करे सो सरगुण स्वरूप के चरण प्रतख गुरु नानक जैसे है और गुरबाणी के चरण शब्द है और निर्गुण स्वरूप के अधिष्ठान रूप चरण है विख्या कोई न सकी मिल साधु गुण गाहो उस वाहिगुरु परमेश्वर के जिहड़े गुरमुख ने उन्होंने नाल मिल के गुण गाओ क्योंकि वो अगे गाउंदे ने उस रास्ते के उत्ते चले हुए ने ते जिहड़ा नवां रास्ते के उत्ते चलण वाला है उन्होंने गलबात करेगी भाई हाँ आ जाओ चलो उस मार्ग के उत्ते उन्होंने यह चीज़ पिया भी गुरु महाराज की शरण लो गुरु नानक साहब जी की उन्होंने उपदेश लो असी भी उससे चलने तुसी भी चलो इन्ना सानू कोई इधर तजर्बा है ये चीज़ है बाकी तजर्बे का सागर श्री गुरु ग्रंथ साहब इतने कढ़ के चीज़ा रखिया वही वो चीज़ अगे कह देंगे मिल साधु गुण गाहो गाहो का गायन करो और गाहो ग्रहण करो गुणानू वाहिगुरु के गुणानू गावो और जेड़े हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए जिन गुरु का पाना मनिया तिन कुम कुम जाए इन्होंने गुरु का पाना मन लिया ना हुक्म मनना सुहेला कहन कहावू बिखम तेरा पाप किसी दुख हरेक नूं हुंदा ही है और आपो विच ही फिर सियाणियां नाल विचार करते मेरा दुख है जी आ जा कोई और गुरमुखा कोल पई हुण किवें हो जाए जी कि हरदा नहीं की करिए जी हो चीज़ फिर भाई पाना मनो पाना औखा औखा तो है ही है बिखम तेरा भावन
कि औखियाई तो बिना सीधा भी नहीं ना हुंदा माने है। जहते उपजे तह मिल साधु गुण गा। मिल साधु गुण गाओ भई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ये जगह ने सातों तो गायन हो नहीं सकते। सुनूंगा कहूँगा मुँह बोलूँगा सतनाम वाहिगुरू बोलूँगा कोई शब्द ही बोलूँगा। चलो जहते उपजे तह मिले सच्चे प्रीत समा। ये सच्ची प्रीति है गुरमुखां दी। ये रांझे दी शरीरक प्रीति सी वो भी प्रीति उन्होंने निभा दी है। ते इस तरह ससी पुनों दी कई पतिव्रत इस तरह हुई ने कईयां दे हों ये बाहरली भी पर पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रह रासे बिन हर प्रीत हो प्रीत सब झूठी हो। दृष्टान दिते ने जिस तरह पतंगे की अग दे नाल प्रीति है। मच्छी जिहड़ी रसना के स्वाद दे विच फस जाती है उसदे विच दोष है। प्रीति उधर भी है और वो फसा के मारने वाली है। लोभ विच प्रीति करोगे वो मारू, हंकार मारूगा, क्रोध मारूगा, मोह मारूगा। कर लो प्रीति वे इन्हां। सच्ची प्रीत समा जैसे जिसते जहते उपजे तह मिले जिथों ये जीव कला पैदा हुई सी जीव भाव बनिया सी जैसे उपजी तय मिली फिर वो जी सुरत या होर जी ऐसी ज्ञात जीव की कला सी उत्थे वाहिगुरू परमेश्वर ही मिल गई। सच्ची प्रीत का ये समा ये समाहड़ा है उत्साह है तो उसका लीन होना है। चलिए कर गहलीनी पार ब्रह्म बहुर न विछड़िया। और जी समझ नहीं आती बरीक सिद्धांत है कहने भी जिस तरह बांह पकड़ के पति ओदी सेजा से एक रूपता हो जाए कर गए लीनी पार ब्रह्म। इधर बांह केड़ी है जी सुरत है कर गए लीनी पार ब्रह्म। वाहिगुरू परमेश्वर ने आप ही कृपा करके जी साड़ी सुरत सी ना वो पकड़ करके इधर उधर भजी फिरदी सी या बुद्धि ते कर गए लीनी ते उन्हें अपने नाल मेल ली अपने विच लिवलीन कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुत न बिछड़िया हो। हुण फिर नहीं मुड़ के जीव बंदा वाहिगुरू का ही रूप हो गया। और जिस तरह देखो कोई ऐसा पुरुष स्त्री नहीं है जिहड़ा सारी जिंदगी दे विच ही अपने पति दे नाल उसे ही एक सेजा दे उत्ते ही पिया रहे कि वो सुख दे विच कदे भी विछोड़ा ना होवे। इधर भी कामकार करने भी होए इधर भी होए 100 होए मर भी जाता दुखी भी हुंदा है सारे फिक्र उत्थे फिर विच ही लिवलीन है आनंद ही आनंद ना कदे विछोड़ा है बहुत न बिछड़ गया। मुड़ करके नहीं उस जिहड़ा संसारिक भी शरीरिक सुख है या रस है उन्होंने छड्डना चाहते मरे पे असीं तो सब दुनिया ही तो कहते भी वो महाराज कहते फिक्का या एक किनका मात्र है वो ऐसा आनंद है। और जो सानू आऊ फिर ही पता लगू ना थोड़ा थोड़ा जा जिमें कोई बोलने वाले या होर जा नलके लाने वाले हो या खूह पहला पटते होंगे सी वो कहते रेता आ जाता जी सलाबी मिट्टी आ जाती है जी तो रेता आ जाता है तो कहते पानी आने लगा है हुण। इस तरह निशानियां उहदियां पता लगदियां ने या सुख महसूस होंदा है शांति महसूस होंदी है निश्चा होंदा है। हाँ जी बहुर न विछड़िया मुड़ के फिर कदे विछोड़ा नहीं हुंदा। बार जाओ लख बेरिया भाई ऐसे काल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर तो एक बार इन्हें लखां बारी असीं कुर्बान जाइए होन मेट देइए। हर सज्जन आगम अगा तो कैसा वाहिगुरू सज्जन मित्र है। हर सज्जन स्वामी मोरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थकी जी कदे न बोले कौड़ा कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान ने अवगुण को न चितारे। ऐसा कोई है माड़ा जा अवगुण करे तो पति तो कहने तेरे चौगुण ने
फिर एक तिल नहीं भन्ने काले, एक दिन जी नहीं होता कहते जी नहाना है तो औखा ही है। सवेरे उठ के ठंड दे विच पोह दे महीने दे विच फिर बैठो, थोड़ा खाओ, थोड़ा समो, एक घालना है। धर्म की किरत करो, पर एक तिल नहीं भन्ने काले, एक तिल जिन्नी भी थोड़ी कमाई व्यर्थ नहीं जान देगा, उसका फल देगा। हर सज्जन अगम अगाम, वाहिगुरु परमेश्वर सज्जन है, कहते दिसदा दुसदा तो है नहीं, मन करके अगम है। आ जिहड़ा मन भजा फिरदा है, यदि पहुँच नहीं, गुरु के शब्द सिक्ख्या दे नाल जुड़ जाए तो कुछ समझ आती है। तो अगाहो बुद्धि दे भी गाहो ग्रहण करन तो वो अगोचर है, अगोचर इंद्रियां के विषय अगम मन करके, और बुद्धि ये संसारिक बुद्धि नहीं उसनों समझ सकती, ना उसने ग्रहण कर सकती। उसका ग्रहण करना की है, उस दे विच लिवलीन होना, सुख शांति होनी है, काम को लोभ मोहकार मिटने। हर सज्जन नगम अगाहो। चलो शरण पाई नारायण, नानक दर पाई आहो। भाई यही रास्ता है, यही दर है। गुरु नानक साहब जी दे वो जन सतगुरु संगत, ये सतगुरु साहब जी की संगत से कोई रास्ता होंदा नहीं पिया, है दर उस रूप की प्राप्ति का वाहिगुरू का पिछलदा नानक हर शर्म पई नारायण ने। भी जो इस दर से पे रवांगे, बेनतियां करी जावांगे, तो फिर वाहिगुरू नूं भी लज्जा आवेगी कि मेरे दर से पिया है। ओग सुहन शरण पाई नारायण, नानक दर पाई आहो। फिर दर पईया नहीं पाई खबरसार, आप ही वाहिगुरू परमेश्वर लेगा। कबीर केसो केसो कुपिए ना सोइए आसार, दादस के कुपने कबू सुने पुकार। चलिए ओख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे परवाह। पूरे महीने में भी को चढ़िया, चलो कोई किसी महात्मा को जाओ, चंगी सिक्ख्या हो, चंगा लगूगा। पो चंगा लगू जो सिक्ख्या नूं मन लांगे, नहीं तो सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठिया मुक्त न होवे, जे मनाएगी नहीं तो फिर किसी गुरमुख की, कोई बजुर्ग की, कोई सियाणे की, वो फिर ही चंगा होगा, उसका तजर्बा होंदा है। इत्थे वाहिगुरू का तजर्बा, गुरु नानक साहब जी का तजर्बा, उन्होंने गद्दी के मालिक गुरु अर्जन साहब जी कह रहे हैं। हाँ जी, पोख सुहंदा सर्ब सुख, पोख सुहंदा सर्ब, पोह का महीना कहते चढ़िया है। जिहड़ा कोई सिक्ख्या नूं मन लैंदा है, उन्होंने सर्ब सुख, उन्होंने शोभनीक है, शोभा वाला है, सर्व सुख पढ़ दे। जिस बख्शे वे परवाह, अरे बख्शिश है उस वाहिगुरू परमेश्वर की, साधन करने और कृपा के पात्र होना, बेनतियां करनियां, अरदासां करनियां। जिस बख्शे जिसनूं बख्शिश कर दे, वो वाहिगुरू परमेश्वर बड़ा दाता तिल ना तमाए, कि उसनूं साथों लैण की तो कोई लोड़ नहीं है। ये कुछ लवे तो साढ़े भले वास्ते सिक्ख्या है, जो गुण धार लांगे साढ़ा भला है। वाहिगुरू की शरण लै लांगे, उन्हें ज्ञान दे देना है, गुण बख्श देने हैं, सब कुछ ही साढ़े भले वास्ते है। यही उसका हुक्म है भी अपना भला कर लो, ये होर चंगी की है। ये भी अपने परिवार में कोई माँ प्यो सिक्ख्या दो, थोड़े भले वास्ते, सुख वास्ते भला कहो, सुख कह दो, सत्कार वास्ते है। भोग सुंदा सब सुख, जिस पक्षे बेप्रवाह। पहली पंक्ति शरण पाई नारायण, नानक दर पाई आहो। ओख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे परवाह। अरे बख्शिश की गल है, नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़ा फीस, ते अगे जेड़े जिथे सोहन पंज प्रवान नदरी कर्म पवै निशान, नदरी वाहिगुरू की मेहर। तो अगे ज्ञान खंड की व्यवस्था है, शर्म खंड की व्यवस्था है, कर्म खंड की व्यवस्था है, सचखंड वसै निरंकार है। उसके साधन जत बहारा है, वो मेहर तो बिना नहीं प्राप्त होंगे। इस करके मेहर किवें हुंदी है, किसी का हुक्म मनीए, खुशी कृपा करके वाहिगुरू परमेश्वर की, गुरु नानक साहब जी की मेहर पाई। नालों हमें छड़ के शरण लीए, बेनतियां करिए, हमें छड़ के आग्ञा मनीए, तो फिर सारे होंगे। सो
इन्ना ही समा कुर्बान करना, क्योंकि सर्दियों की रुत है, ठंड है, तो दूरों आए गुरमुख माई पाई उन्होंने भी पहुँचना होंदा है। तो भुल चुक की क्षमा करनी, सतगुरु साहब जी के चरणों में अरदास करिए कि सच्चे पातशाह जो ये विचार आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी राही, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्वरूपन गुरबाणी स्वरूप है, गुरबाणी राही बख्शियां कीतियां हैं। ये कृपा करके सानू मनन का बल बख्शो और ये बख्शिश करो सानू सिमरन दी नाम दी। सरम पई नारायण नानक दर पैया, ओह सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवास। वाहिगुरु जी का खालसा। हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु नाथ, प्राणनाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे सुमरथ यगन पूरन मोहे मैं आधार, अंध कूप महापहचान नानक पार उतार। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणतार। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सबते, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा भवे। हे अपरंपर हर हरे है पियो गुणहार, हे संता के सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान रखो ये प्रो। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार, जो सरदा कर सेंदे पार उतार नहार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार, जो सरदा कर सेंदे पार उतार नहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।